Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 6.1 has been finished, and during this date I have proved that the theorems like 6.2, 6.3, 6.4 and these theorems are related to the alternate interior angles theorem and converse of alternate interior angles theorem. And this theorem 6.4 is related to the angle on the same side of the transversal is supplementary, and sometimes this theorem is also known as co-interior angle theorem. Co-interior angle theorem, or you may say that co-interior angle property. This is the short name of the angle on same side of transversal is supplementary. बच्चों, अगर angle on same side of transversal is supplementary अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये इसका शॉर्ट नेम होता है co-interior angle property भी कह सकते हैं. Now today I will prove the theorem 6.5 which is also the converse of theorem 6.4. बच्चों, this theorem is the converse of 6.4 because here in this theorem you have to prove that the lines are parallel. समझ में आ रहा है? तो हमें लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए इस थ्योरम को प्रूव करना होगा, और इट इज आल्सो नोन एज द कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम. को इंटीरियर एंगल थ्योरम भी इसको बच्चों कहा जाता है. if you will use in future this theorem for solving any theorem or numerical problem, then you have to write the reason behind the lines which you will use. Okay, now I am starting here. बच्चों, इसमें first of all you have to read the statement. If a transversal intersects two lines, बच्चों यहाँ पे देखिए two lines दिया हुआ है, पैरेलल नहीं दिया हुआ है. समझ में आ रहा है? तो हमें two lines हैं और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एंड आल्सो गिवन दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. यानी कि टू लाइन्स है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. का मतलब दोनों एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम 180 डिग्री के इक्वल है. देन वी हैव टू प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल टू each other. Okay, so here we can write, given that lines transversal PQ intersects two lines AB and CD, and also given that एंगल 1 + 3. बच्चों, एंगल 1 और 3 क्या होगा? एंगल ऑन सेम साइड, और ये क्या दिया है? सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 के इक्वल है. और ये भी दिया हुआ है 2 + 4 भी 180 के इक्वल होगा. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट two lines are parallel to each other. Then we have to prove that lines AB is parallel to line CD. Now I am writing here proof of this theorem. So here from figure we can write here from figure. बच्चों, इसमें गिवन है एंगल 1 + 3 is equal to 180 degree. It comes from given. Okay, and also from figure we can write angle 4 + angle 3 is also 180 degree. ये कहाँ से है बच्चों? by linear pair of angle. देखिए ध्यान से, 3 + 4 का सम 180 होगा. क्यों होगा? क्योंकि बच्चों इफ आपको मालूम है if a ray stands on a line and the sum of two adjacent angle is measure 180 degree. So this property is called linear pair of angle property. Now student, look the
equation 1 and 2 carefully. Here the right hand side part are equal, so we can say that the left hand side part are also equal. So here from hence equating equation 1 and 2 we get, तो देखिए बच्चों दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे हम तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है 1+3 और सेकंड इक्वेशन का क्या है 4+3। अब बच्चों 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल्स हैं और सेम ऑपरेटर के साथ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब ध्यान से देखिए बच्चों 1 और 4 कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना, और ये इक्वल भी प्रूव हो गया। तो थ्योरम 6.3 recall this theorem 6.3, and in theorem 6.3 it says that if a transversal intersects two lines and a pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel to each other. So here we can write since angle 1 and angle 4 are interior angles and they are equal also, जैसे आपने देखा है इसको ये इक्वल भी हैं, hence from कन्वर्स है बच्चों 6.3 क्या है, कन्वर्स है, किसका कन्वर्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कन्वर्स है। हेंस फ्रॉम कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम वी कैन से दैट लाइन AB is parallel to line CD, hence proved। तो बच्चों जैसे आपने लिखा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने कन्वर्स क्या कहता है कि जब टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है एंड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू द ईच अदर। सो दिस इज द कंप्लीट steps of this theorem and it is also known as the converse of co-interior angle theorem. Okay, and now students we are moving the next theorem, but before moving the next theorem pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now students we are moving the next theorem, that is theorem number 6.6, and this theorem sometime will use if you have given two lines or more than two lines which are parallel to the same line. Okay, so here the statement is lines। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, lines। lines का मतलब many line, समझ में आ रहा है, बहुत सारे लाइन के बारे में डिस्कस हो रहा है। lines which are parallel to the same line are parallel to each other, मतलब कि अगर कोई एक दूसरे कोई बहुत सारी लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो सभी लाइन आपस में पैरेलल होंगी, एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं बच्चों तो सभी लाइन आपस में पैरेलल होंगी। सो हियर वी कैन ड्रा द फिगर ऑफ दिस थ्योरम। हियर लाइन मान लेते हैं देयर आर 3 लाइंस, द नेम ऑफ दिस लाइन इज लाइन L, लाइन M एंड लाइन N, एंड द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट these 3 lines। suppose this the name of this line is P. Okay, so here the number of this angle is 1 2 3. So here given I am writing given line L is parallel to line M and line M is parallel to line N, so we have to prove that line L is parallel to line N. Okay, now proof. So proof is here from figure we can write since line L is parallel to line M given
देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बच्चों अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन 1 और दिस इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लाइन? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल axiom. Okay, similarly we can write again, similarly line M is parallel to line and given also, it is also given. Then we can say that angle 3 is equal to angle 2, angle 3 angle 2 के equal होगा with same reason, with same reason. Now equation 1 and look the equation 1 and 2 students, these the right hand side part are equal, so we can say that the left hand side part is also equal. So here we can write equating equation 1 and 2, we get एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब बच्चों देखिए ध्यान से 1 और 3 इक्वल हो गया और 1 और 3 का कैसे एंगल है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपको यूज करना है एंड द कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल सेज that if a transversal intersects two lines and a pair of corresponding angles are equal, then we can say that the two lines are parallel to each other. So here we can write angle 1 and 3 are corresponding angles and they are equal also. इक्वल क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए 1 और 3 इक्वल है। Hence from converse of corresponding angle axiom, converse of corresponding angle axiom, we can say that line L is parallel to line N, which we have to prove, hence proved. समझ में आ गया बच्चों? लाइन L जो है लाइन N के पैरेलल होगी, ठीक है। Now student, we are moving the last theorem of this chapter, that is theorem 6.7, and after this theorem all the theorem will be finished. So today I will also finish this theorem, but before moving this theorem, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the last theorem of this chapter. So here the theorem 6.7, and student, first one I want to say first one more thing, that this theorem is very important because after this chapter this theorem also will use in chapter 7. So here the first the theorem statement of this theorem is the sum of the angles of a triangle is 180 degree. बच्चों किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, यूनिवर्सल रूल होता है, जिसका यूज़ हम बहुत बार करेंगे। मैनी टाइम वी विल यूज दिस थ्योरम। सो स्टूडेंट, द नेम ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड angle sum property of triangle. Angle sum, it is also called angle sum property of okay. So the name of this theorem is angle sum property of triangle. तो बच्चों सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज दिस इज द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आपको मालूम है a closed figure which is bounded by 3 line segment is called a triangle. So here the point of this vertex is ABC, and here we have to prove that the sum of all the angles, it means 1 plus 2 plus 3 angle 1 plus 2 angle 3 is equal to 180 degrees. So here we can write, given that a triangle
ABC। ओके, और कुछ तो दिया नहीं है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों अब दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। तो यहाँ पर ट्राइंगल से रिलेटेड आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है ना, क्योंकि चैप्टर 7 में स्टार्ट होता है ट्राइंगल। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में एक ज्योमेट्री में एक सॉल्यूशन बनाया गया बच्चों, और उस सॉल्यूशन का नाम होता है कंस्ट्रक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बच्चों सॉल्यूशन होता है, या हम ये कह सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रूफ, है ना। इस कॉन्सेप्ट का बच्चों तब यूज़ करते हैं हम जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, जैसे थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, ये सभी थ्योरम अगर आप यूज़ ना कर पाए, देखिए अभी इसमें कोई थ्योरम आप यूज़ कर सकते हैं बताइए, ना तो इसमें पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ना तो इसमें ट्रांसवर्सल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ थ्योरम, सिर्फ आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन, एंड दिस वर्ड इज़ वेरी यूजफुल फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन प्रूविंग ऑफ एनी थ्योरम। तो हम बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बच्चों निर्माण करना। एक ऐसा निर्माण करेंगे जिससे हम कोई भी थ्योरम अभी तक जो आपने पढ़ी है वो एप्लीकेबल, यानी वो अप्लाई करने के लिए आप जो है अथराइज हो जाएं। समझ में आ रहा है? सो हियर वी कैन राइट कंस्ट्रक्शन इज द न्यू टर्म विच आई हैव इंक्लूडेड इन दिस थ्योरम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों? एक लाइन ड्रा करेंगे हम फ्रॉम वर्टेक्स ए, ये इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, और ये जो लाइन होगी बच्चों इस बी और सी लाइन के पैरेलल होंगी। सो हियर वी कैन राइट ड्रा अ लाइन, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू। The name of this line is PQ. Draw a line PQ through point A which is parallel to line PC। समझ में आ गया? एक लाइन है जो कि पैरेलल भी है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें दो एंगल और बन रहे हैं, इनकी भी नंबरिंग करेंगे 4 और 5। देखिए नंबरिंग करने का ये एडवांटेज है बच्चों कि नंबरिंग करने से थोड़ा सा आपके ऊपर जो है इसमें टर्म्स थोड़ा इजी हो जाते हैं। जैसे आपको बोलना है एंगल 2, तो एंगल 2 शॉर्ट में आपको तुरंत मैं बोलूँगा कि एंगल 2, लुक द एंगल 2। अगर मैं बोलूँ कि लुक द एंगल CAQ तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। CAQ देखेंगे तो आप C देखेंगे, A देखेंगे, Q देखेंगे। अगर मैं कहूँ एंगल लुक द एंगल 5, तुरंत आप जो है नजर आएगा कि एंगल 5 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द बेनिफिट फॉर नंबरिंग द एंगल्स। तो बच्चों देखिए हमने एक लाइन ड्रा की है जो कि B और C के पैरेलल है, और इससे आपको 2 एंगल मिल गए हैं। अब हम इसमें जितने भी थ्योरम्स आपने पढ़े हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग हियर द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं जैसे ये लाइन क्या है बच्चों, BC लाइन PQ के पैरेलल है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, AB को मान लेते हैं ट्रांसवर्सल। AB इज लुक लाइक अ ट्रांसवर्सल, लग रहा है ना AB ट्रांसवर्सल। सो बच्चों देखिए ध्यान से, इसमें एंगल सबसे पहले देखिए, अभी कुछ भी आप कॉन्सेप्ट लगाइए, पहले तो हम इसमें ये कॉलर कॉन्सेप्ट लगाते हैं 1, 4, 5 को। देखिए बच्चों ध्यान से, एंगल जैसे ये PQ लाइन देखिए, है ना, PQ लाइन में एंगल इसको सीधा करके बनाएं अगर हम इस तरह से ऐसे, तो मान लीजिए कि ये बीच वाला 1 है, ये किनारे वाला 4 है, और ये वाला 5 है। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
क्यों? क्योंकि ऑल द एंगल्स फॉर्म इन अ लाइन। हियर फ्रॉम फिगर एंगल 1 + 4 + 5 is equal to 180 degree. Equation number 1, and the reason behind this is all the angles, since यहाँ लिखेंगे since all the angles formed in a line, इन एक ही लाइन पे बन रही हैं, इसलिए ये तीनों एंगल का 180 डिग्री होगा। नाउ अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? सिंस PQ is parallel to AB बाई कंस्ट्रक्शन में आपने यही तो लिखा है बच्चों कि PQ लाइन क्या है? पैरेलल है। एंड लेट, हम मान लेते हैं कि AB क्या है बच्चों? AB इज ट्रांसवर्सल, और हम मान लेते हैं AB जो है ट्रांसवर्सल है। देन वी कैन से दैट, देन हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, जैसे ये लाइन है बच्चों, PQ लाइन है और ये BC लाइन है ना, और ये है, ये क्या है बच्चों? AB। ठीक, तो इसमें ये एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये कैसे इक्वल होगा बच्चों? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, सॉरी बाय अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। सो वी कैन राइट द रीजन बिहाइंड दिस बाय, देखिए बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ये एक शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका होता है। AL के बाद डॉट लगा दीजिए, AL के बाद डॉट लगा दीजिए, एंगल का साइन बनाइए या सिंबल बनाइए एंगल का, और अपॉस्ट्रॉफी ऐसे बनाइए और S लगा दीजिए। ये इतना आप अगर बना देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सिमिलरली, अब सिमिलरली क्या लिखेंगे हम? सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लीजिए। अब बच्चों इसमें भी देखिए 3 और 5 इक्वल होगा कि नहीं होगा? सेम रीजन से 3 और 5 भी इक्वल होगा। सो सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड वी लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों इस दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो बच्चों इन दोनों रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। तो जहां पर बच्चों 4 है, 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 4 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं। और बच्चों जहां पर 5 है, 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और बच्चों एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 में पॉइंट वर्टेक्स क्या लिखेंगे? एंगल A। एंगल 2 में वर्टेक्स क्या लिखेंगे? एंगल B। और एंगल 3 में वर्टेक्स क्या लिखेंगे? एंगल C। एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों तो यही आपको प्रूव करना था, जिसको आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चों? नाउ द थ्योरम, all the theorem the proof of all the theorem is over now, and student only exercises has remained. So student, in next video I will solve the questions of exercise 6.2 as well as exercise 6.3. so thank you for being with us.